হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক। সকাল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে পুরো নৈনিতাল ঘুরলাম, সবকটা ট্যুরিস্ট প্লেস আপনাদের দেখালাম। তারপর আমরা ডাইরেক্ট চলে এসেছি খুরপাতালে। খুরপাতালের ঠিক সামনেই জে জে ভিলেজ অ্যান্ড রিসর্ট, এখানেই আমি রুম নিয়েছি। আপনারা যদি ডাল লেক গিয়ে থাকেন কাশ্মীরের, তো সেই ডাল লেকের মতোই সিমিলার রুম। রুমগুলোর ট্যারিফ, ডবল বেডরুম কটেজ নিয়েছি আমি। তো এই ডবল বেডরুম কটেজের প্রাইস হচ্ছে পার ডে 3000, ইনক্লুডেড ব্রেকফাস্ট। তো রুমগুলো খুব একটা আহামরি কিছু নয়, কিন্তু আপনি যদি প্রকৃতিপ্রেমী হন তাহলে এটা একটা আপনার জন্য পারফেক্ট জায়গা। অসাধারণ ভিউটা দেখলেন আপনারা, অসাধারণ ভিউ, কোনো তুলনা হয় না। আপনাকে এখানে এসে টাইম স্পেন্ড না করলে আপনি ঠিক এই জায়গাটা ফিল করতে পারবেন না। আর বৃষ্টি প্রচণ্ড, সুতরাং ওই জন্য একটু বোরিং তো লাগছে, আর খুব বিরক্তিও লাগছে। ভিজে যাচ্ছি বারবার, ছাতা নিয়ে রেনকোট পরে সব জায়গা কভার করতে হচ্ছে, খুব একটা ক্যামেরা ইউজ করতে পারছি না, জল পড়ে যাচ্ছে, তো শুটিংয়েও প্রবলেম হচ্ছে। প্রচণ্ড হাওয়াও দিচ্ছে, ঠান্ডাও আছে। তো দুপুরে লাঞ্চ করব, তারপরে আজকে রাত্রিটা এখানেই স্টে করব, দিয়ে কালকে শতাব্দী করে আমরা যাব দিল্লি। দিল্লি থেকে রাজধানী করে ফিরে যাব। আর যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। স্টে টিউনড। হ্যালো, নমস্কার। এই মুহূর্তে আমি আছি খুরপাতালে, যেটা নৈনিতাল থেকে 10 কিলোমিটার নিচে। আমি খুরপাতালে জে জে রিসর্টে আছি। এটা একটা অসাধারণ রিসর্ট। তো এই এপিসোডে এই জে জে রিসর্টের সব কিছু আপনাদেরকে জানাবো, এদের সমস্ত রুম দেখাবো, কন্ট্যাক্ট নাম্বারস দেবো, আর এখানকার ভিউও দেখাবো। অসাধারণ জাস্ট ভিউ। আর এখানকার মালিক যিনি আছেন বা ওনার যিনি আছেন, উনিও খুব একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। ওনার সাথেও বিকালবেলা কথা হবে, তো সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি। আর এই যে খুরপাতাল, আমার ব্যাক সাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুরপাতাল। এই খুরপাতাল ইটস আ কালার চেঞ্জিং তাল, ইটস বিউটিফুল সিনারি। আমি সব সিনারি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এখানকার খাবার দাবারও খুব ভালো। আর এখানে সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপসের বার্ডস আপনারা এখানে দেখতে পাবেন আসলে। অসাধারণ সব পাখি সমাগম এখানে হয়। অ্যাকচুয়াল কাল রাত্রির থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে, তাই পাখিদেরকে দেখা পসিবল নয়। এটা আমার কাছে খুব দুঃখজনক, কারণ আমি পোগো দুজনেই খুব পাখি ভালোবাসি। ইভেন সব ধরনের জন্তু জানোয়ারই আমার খুব পছন্দের, বিশেষ করে ডগস, বার্ডস, এগুলো খুবই পছন্দের। তো দেখতে পাবো না, একটু খারাপ লাগছে, কিন্তু এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ, মনকে মুগ্ধ করে দিচ্ছে। এখানে না আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। অবশ্যই যদি আপনারা নৈনিতাল আসেন, তাহলে নৈনিতাল থেকে 10 কিলোমিটার নিচে এই কুরপাতালে যে যে রিসর্টে আপনারা স্টে করতে পারেন। এখান থেকে সব সাইট সিনই খুব কাছে। আমি আগের এপিসোডে সব সাইট সিন আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি। আর বৃষ্টির জন্য সেইভাবে আমার মনের মতো করে শ্যুটটা হয়নি। তো যাই হোক, সঙ্গে থাকবেন। হ্যালো, গুড ইভিনিং ভিউয়ার্স। এই মোমেন্টে আমি অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি যে কুরপাতালে জেজেস ভিলেজে আছি। আর জেজেস ভিলেজে আমি একজন খুব স্পেশাল মানুষের সাথে আছি। আমি জেনারেলি যে কোনো ওনারের সাথে খুব একটা কথা বলি না, কিন্তু জেজেস ভিলেজের যিনি ওনার, শুধু ওনাকে ওনার বললে ভুল হবে। উনি জুলজির প্রফেসর ছিলেন, অ্যান্ড উনি রাষ্ট্রপতি অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন। তো এটা একটা খুব স্পেশাল অনার। সেই জন্যই ওনার সাথে আমি একটুখানি নিজে থেকেই কথা বলতে চাইলাম। তো ওনার থেকেই শুনে নেওয়া যাক এই জায়গা সম্বন্ধে, ওনার সম্বন্ধে। উনি বিভিন্ন কবি সম্মেলনেও যান, তো শোনা যাক ওনার মুখেই। जी, मेरा नाम सर मैं हेमंत बिष्ट हूँ और यहीं उत्तराखंड का इनहेबिटेंट हूँ। मैं सौम्या दास जी और आपकी मिसेज और आपका परिवार यहाँ आया है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बस बातचीत मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में और ख़ास करके नैनीताल में माना जाता है कि जो समर सीजन है उसमें तो थ्रू आउट
इंडिया से लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन बंगाली सीजन जिसे हम अक्टूबर में दुर्गा पूजा के समय में, इस सीजन का नाम ही हमारे नैनीताल में बंगाली सीजन कहा जाता है। और हमारी मान्यताएं हैं कि इस सीजन में बहुत ही लिटरेरी टेस्ट के लोग आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, और जो इस नेचर के लोग होते हैं, खास करके बंगाल के बारे में जो हमारे मनमानस में ये रचा बसा है कि वहाँ पर कलाकार किस्म के व्यक्तित्व रहते हैं। तो आपका वेलकम, क्योंकि आप नेचर को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, आप यहाँ के कल्चर के विषय में बहुत कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, इसलिए मेरा सौभाग्य है। मैं अपने दर्शकों को और आपको बताना चाहूँगा कि नैनीताल के बिल्कुल नियर बाय प्लेसेज में ये गांव है खुरपाताल, और इस गांव की विशेषता यहाँ का एक सुंदर तालाब है जो ओलिगोट्रॉफिक है। तो डॉक्टर दास, एक्चुअली ओलिगोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो नेचुरल लेक है, यहाँ का जो पीएच वैल्यू है, आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, पीएच वैल्यू यहाँ का जो है वो एसिडिक नहीं है, बेसिक है। जहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है तो वहाँ एसिडिटी बढ़ जाती है, तो वो लेक एसिडिक होती है, लेकिन जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है वो ओलिगोट्रॉफिक होती है, नेचुरल लेक होती है। और यहाँ का पीएच 8 के करीब होगा, 8 के करीब, तो सुंदर लेक है। और इस लेक की विशेषता ये है कि ये डिफरेंट सीजन में कलर चेंज करती है, इसलिए इसको मिस्टीरियस लेक, कलर चेंजिंग लेक। और इसके पीछे हालांकि लोगों का विश्वास, जो हमारे किंवदंतियां बन जाती है ना, फ्रेजेस बन जाते हैं, कहानियां बन जाती हैं कि इस लेक के जिस कॉर्नर में अनएक्सपेक्टेड अगर लाल रंग हो जाता है तो वहाँ कोई खतरा है या वहाँ कोई डेथ होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके अंधविश्वास, मतलब जो लोगों के मन में है, उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि इस लेक में 44 प्रजातियां एल्गी की हैं। और एल्गी का जो नोमेनक्लेचर होता है, जो नाम होता है सर, वो अकॉर्डिंग टू कलर होता है। जो क्लोरोफाइटा इज ग्रीन एल्गी, रोडोफाइटा इज रेड एल्गी। और जब इसमें स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में बीजाणु बनते हैं। जब वो लेक में वो बीजाणु आते हैं तो सर्टेन कलर उसमें दिखाई देता है। अगर रोडोफाइटा की एल्गी का वो आता है, आपका बीजाणु आते हैं, तो उन दिनों रेड हो जाएगा जिस कॉर्नर में। अगर ग्रीन यानी क्लोरोफाइटा की अगर आ जाएंगे, बीजाणु आ जाएंगे, तो ग्रीन होगा। पायरोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा, जो अलग अलग रंगों के नाम हैं, उस आधार पर रंग बदलते हैं। एक बात। दूसरा जो यहाँ है सर, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इस तरह का है, मतलब आप कह सकते हैं कि ना तो बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है। तो यहाँ पे लोग आते हैं तो बर्फ तो गिरती है लेकिन टिकती नहीं है। और यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्लेन्स का भी गुण है और पहाड़ों का भी गुण है। यहाँ की मिट्टी रेतीली है, तो दैट्स वाई जो अंडरग्राउंड जो वेजिटेबल है उसमें इतना मतलब स्वाद बताते हैं, क्लेस मिट्टी में स्वाद नहीं होता, लेकिन जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें बहुत सारा स्वाद होता है। तो ये तो मैंने थोड़ा यहाँ के विशेषता बताई है। वो मतलब जिसके लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बोल दीजिए। जी, एक्चुअली डॉक्टर दास, हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एक विशेष पुरस्कार होता है जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उसको राष्ट्रपति पदक कहते हैं। तो उसके सर्टेन उसमें क्या होते हैं कि क्राइटेरिया है कि ऐसा शिक्षक जो अपने पठन पाठन, अपने शिक्षण से इतर भी समाज की सेवा में कुछ करता है। ऐसा शिक्षक जो नशे से बिल्कुल दूर है, जिसने समाज में एक ऐसा आदर्श स्थापित किया है। ऐसा शिक्षक जिसने प्रकाशन किया है और जो प्रसारण करता है, जो मीडिया में आता है लेकिन लोगों को अच्छी-अच्छी बातें बता करके बच्चों को प्रेरित करता है। ऐसा शिक्षक जिसने हमारे संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत काम किया हो। तो ये सर्टेन 10-12 पॉइंट होते हैं, तो उसमें हमारे अधिकारीगण हमारा परीक्षण लेते हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने दूरदर्शन के लिए बहुत सारी कविता, बल्कि भारत के जो बहुत लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं उनके मध्य किया है। और सांप्रदायिक सौहार्द में मैंने बहुत सारी कविताएं और लेखन किया है, नाटक किए हैं, और रिजल्ट मेरे ऑलवेज बहुत अच्छे रहे हैं। मैंने एक इस तरह का भी एक अपना ग्राफिक्स तैयार किया था
कि हाई स्कूल में अगर 10th में बच्चों के कितने मार्क्स थे, फिर इंटरमीडिएट में कितने थे, तो ग्रेजुअल चेंज या इंटरेस्ट कितना ज़्यादा क्रिएट किया, ग्राफ तैयार किए थे। तो इस तरह से मुझे अंततः चुना गया और मैं बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो मेरे बहुत ही प्रिय रहे हैं, आदर्श रहे हैं, उनके कर कमलों से मुझे पुरस्कार मिला। और दूसरा सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर राज्य का अपना एक राज्य गीत होता है, तो उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत मेरे द्वारा लिखा गया है, जिसमें उत्तराखंड की विशेषता, यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज, यहाँ के डायलेक्ट्स और यहाँ के जो आंदोलनकारी थे, यहाँ के जो सिपाही थे, यहाँ के जो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने राष्ट्र के योगदान निर्माण में अपना योगदान किया, उन सब विषय वस्तुओं का समावेश मेरे उस गीत में है। अंततः उत्तराखंड सरकार ने उस गीत को चुना और वो गीत मेरा जो है अब राज्य गीत के रूप में है। कई जीके बुक्स में आपने देखा होगा, अगर आप क्वेश्चन गूगल कीजिएगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ स्टेट सॉन्ग ऑफ उत्तराखंड, तो आपको वो उत्तर मिलेगा। और इसके अलावा सर, मैंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। अभी आप नैना देवी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सुबह शाम जो आरती होती है वो भी मेरे द्वारा लिखी गई है। और कई उल्लास गीत हैं, विकलांगों के लिए जो संचेतना गीत है वो मेरा ही लिखा है। आपने कभी दूरदर्शन में आयुष्मान गीत देखा होगा, पोषण से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से, वो मेरा ही लिखा हुआ है। और इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन में युवाओं को जागरूक करने के लिए कि हमने वोट ज़रूर करना चाहिए, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, तो वो भी मेरा ही गीत है। तो इस तरह से कई अवेयरनेस सॉन्ग मेरे हैं, नशे के विरुद्ध हैं। तो समाज सेवा में जितना कुछ बन पड़ता है डॉक्टर दास, मैं करता हूँ और मुझे खुशी होती है आपकी तरह के लोगों से बातचीत मेरा ये करने। सौभाग्य है कि मैं ना जानते हुए भी आपके इस रिसोर्ट में पहुंच गया और आपसे मिल पाए नहीं, और आपसे मैं कुछ सीख बता भी रहा पाए। था सर, डॉक्टर दास, मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो ये वाला सीजन है हाँ, सर, हाँ, इस सीजन को हम बंगाली सीजन कहते हैं। हाँ, आज से नहीं, जब से हम पैदा हुए हमने यही सुना कि बंगाली सीजन में ऐसे लोग, कलाकार, चिंतक, विचारक, ये सब आते हैं कि जो वास्तव में भ्रमण करते हैं, जो वास्तव में पर्यटन को इस दृष्टि से देखते हैं कि भारत की विविधता का वो आनंद लें। तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पर आए और आपका मेरा आशीर्वाद एक बैड मिला। लक भी है कि कल रात से बारिश हो रही है। तो जी, आप देख रहे हैं डॉक्टर सौम्या, ये हमारे उत्तराखंड का एक त्योहार है और ये कर्क संक्रांति के दिन होता है। ये माना जाता है कि हम 7 प्रकार के बीजों को एक टोकरी में या पात्र में बोते हैं और टेस्ट करते हैं कि बीज, कौन-सा बीज इसमें बहुत अच्छा हुआ है। तो ये बेसिकली फसलों को पूजने का, फसलों की उपासना का पर्व है हरेला, तो मैंने उसका प्रतीक ये रखा है। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो टोकरी है, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि चैत्र के महीने में इस टोकरी में पकवान रख कर के भाई अपनी बहनों को उनके ससुराल में उपहार देने जाता है। तो भेंट से भिटौली बना है, तो ये भिटौली के लिए एक विशेष पवित्र पात्र बनाया जाता है और भाई अपनी बहनों को, तो और बहनें भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती हैं कि कब हमारा भाई आएगा और कब हमें भिटौली देगा। इसके बाद सर, जैसे आपके यहाँ बंगाल में या डिफरेंट जगह डिफरेंट प्रकार की रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, चाहे वो मधुबनी की हों या बंगाल की हों, हमारे यहाँ इनको ऐपण कहते हैं। और सर, ऐपण की विशेषता ये है कि हर पूजा अर्चना में हम ऐपण प्रयोग करते हैं। जैसे अगर किसी का जनेऊ, उपनयन संस्कार है, तो उधर का ऐपण जो है, इसमें 7 ऋषि बने हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसे सप्तर्षि चौकी कहते हैं। तो इस सप्तर्षि चौकी के माध्यम से उसका उपनयन संस्कार होता है, क्योंकि उसके बाद माना जाता है कि वो वैदिक शिक्षा के लिए आश्रमों में जाएगा। फिर आप देख रहे हैं सर, ये शिवार्चन की शिव चौक है, शिवपीठ कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे छिपा हुआ, ये नव दुर्गा चौकी है। इसमें आप देख रहे हैं जो स्क्वायर से बने हैं, जो क्रॉस से बने हैं, ये किसी भी एंगल से देखिएगा, 9 चौकियाँ, इसमें 9 दुर्गा, 9
चित्र आपको दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे, वो कोई दूल्हे के आगमन के समय है। और ये भी माना जाता है सर, संसार के कितने भी कबीले हैं, वहाँ पे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और हेप्टागन, ऑक्टागन बनाते हैं। और उन आकृतियों में ये मानते हैं कि इसके अंदर बुरी आत्माएं नहीं आएंगी। वो विश्व के किसी भी कबीले में आप देखते हैं। तो ठीक इसी तरह उत्तराखंड में भी इन विभिन्न आकृतियों के माध्यम से किसी भी शुभ कार्य में कोई गलत आत्मा, कोई दुरात्मा ना आ जाए, ये माना जाता है। फिर सर हमने रखे हैं ये कुछ लकड़ी के पात्र, आप देख रहे हैं। ये लकड़ी के पात्र, इसका नाम नाली कहते हैं। और जैसे आपके प्लेन्स में हेक्टेयर होता है, एकड़ होता है, तो यहाँ ज़मीन को नाली से नापते हैं सर। जैसे ज़मीन कितनी है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका आप एरिया नाली बताते हैं। तो नाली क्या है, 2160 स्क्वायर फीट है। और ये माना जाता है उबड़-खाबड़ यहाँ का लैंडस्केप है सर। तो ये इसमें जितना बीज आएगा, इस बीज को आप जितने में बिखेरिएगा, उतना ही एक नाली होगा। अर्थात अगर आप इस बीज को बोएंगे तो आपको दिखाई देगा 2160 स्क्वायर फीट में ये फैलेगा। देखिए नापने की कैसी हमारी पौराणिक पद्धति है। फिर ये लकड़ी के हैं, ठेकी है, इनको ठेकी कहते हैं। लकड़ी के पात्रों में कोई भी चीज़ रखी जाती है, सुरक्षित रखी जाती है, मानी जाती है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के सिक्के रखे गए हैं। और एक सिक्के के विषय में मैं आपको बताता हूँ कि एक सिक्के में उन दिनों छेद हुआ करते थे। तो यहाँ के एक सोमवारगिरी बाबा जी हैं, उनका कार्यकाल 30-40 के दिनों में वो यहाँ के लोगों के बीच में लोकप्रिय थे। यहाँ पे एक छेद वाला सिक्का है, पैसा भारत का ही है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन इस सिक्के में, अंग्रेज के सिक्के में छेद हो जाएगा, तो समझिए कि उनके शासन का अंत हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए ये चीज़ें रखी हैं, पुराने ज़माने की हैं। ये हमारे यहाँ का लोकल, ये जो हस्तशिल्प है, ये यहाँ का रखा है ताकि लोगों को दिखाई दे। फिर और आइएगा, एक बस अंतिम चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे यहाँ के मतलब बर्तन हैं। इन बर्तनों को देखकर, जैसे ये हीट से रिलेटेड, मतलब जैसे प्रेशर कुकर है, तो ऐसे ये खूब इसमें वेपर बनती है। ऊपर एक पानी से भरा कटोरा रखते हैं, तो कोई भी चीज़ गलाने में ये काम करते हैं। फिर ये जब हमारे यहाँ बच्चा अपने नानी के घर पहली बार जाता है, तो उसको खुशहाल होने के लिए, समृद्ध होने के लिए बर्तन दिए जाते हैं। तो ये पहली बार इस प्रकार के बर्तन दिए जाते हैं समृद्धता के प्रतीक। तो ये कुछ कलेक्शन मैंने किया है सर, ताकि लोग उत्तराखंड के संस्कृति के विषय में थोड़ा जानकारी लें। और ये आपने आज उत्तराखंड की संस्कृति के विषय में बात करने के लिए कहा है, तो मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर दास, आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। पहले गए थे जिम कॉर्बेट। अच्छा। उसके बाद गए थे गौसानी। गौसानी बहुत अच्छा सीनरी था। अच्छा। तो उसके তো এখন যে রিসর্টে রয়েছি খুরপাতালে, অলরেডি অনেকটা রাত হয়ে গেছে। আর এত বৃষ্টি, সেই জন্য খিচুড়ি অর্ডার দিয়েছিলাম, মুসুর ডালের খিচুড়ি আর ফুলকপির তরকারি। আমি একবার দেখাচ্ছি। তো জাস্ট খেয়ে একটু রিভিউ দেবো এদের খাওয়াটা কেমন। আজকে সারাদিনে যে রিসর্টের সব কিছু দেখালাম। ঠিকঠাকই করেছে। আর একটুখানি জমাট বাঁধা খিচুড়িটা, একটু পাতলা নয়, যেটা আমরা বাঙালিরা একটু বেশি পছন্দ করি। ঠিক আছে, খাই। এখানকার রিসোর্টে সব কিছু দেখালাম, এখানকার ওনারের সাথে কথা হলো। যদি আপনারা নৈনিতাল আসেন তো অবশ্যই খুরপাতালে যে রিসোর্টে আসবেন, ভিউটা অসাধারণ। দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।